जो सतगुरु जी ने तरस करके इस पावन अस्थान दियां हाजरियां भरन दा सुभाग बल बख्शिश कीता है। आप जी सरवण कर रहे सी बहुत ही सत्कारयोग भाई साहेब भाई शौकीन सिंह जी हजूरी रागी जथा सचखंड श्री हरमंदर साहिब तो बड़ी रस भीनी रसना दे नाल आप जी नूं गुर शबद दे कीर्तन नाल जोड़ रहे सन। सरबत संगतां वल्लों भाई साहब जी दे समुचे जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद है। अरदास है वाहिगुरु जी किरपा करन, इसे तरह समुचे पंथ दी सेवा करन दा बल बख्शिश करन। निमरता सहित सरबत संगतां नूं बेनती है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी की इलाही मुबारक बाणी के मुताबिक उद्यम मत प्रभ अंतर जामी ज्यों प्रेरे त्यों करना दे पावन महान वाका अनुसार सतगुरु जी वल्लों बख्शिश किए हुए उद्यम उपराले दे सदके नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी तिन्हां दे लख ते जिगर अत सत्कारयोग धन धन साहिबजादा बाबा जुझार सिंह साहिब जी तिन्हां दे पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित हो करके आप जी इन्हां समागमां दे अंदर जुड़ रहे हो। आओ साडे दरमियान बहुत ही सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਾ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ पावन महान वाका अनुसार जैसे शत मंदन कंचन के उसार दीने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। बहुत वड्डा उपराला करके संगतां नूं गुरबाणी श्री सहज पाठ जी की संथ्या दे नाल जोड़िया है। आओ साडे दरमियान पहुँच चुके ने भाई साहब जी आप सरबत संगतां दे नाल विचारां सांझियां करन। उस तो प्रथम एक बेनती है कि जिथे आप सरबत संगतां इस अस्थान ते जुड़ के गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो, उत्थे दूर दुरेडे दियां संगतां जिहड़ियां किसी कारण भी इत्थे नहीं पहुँच चुकियां, उन्हां संगतां नूं भी बेनती है कि इस समागम दा जिहड़ा सीधा प्रसारण है वो PTC सिमरन फेसबुक यूट्यूब अकाल चैनल अते संगत चैनल मिस्टर सिंह प्रोडक्शन सिख यूथ हर जस रिकॉर्ड सिमरन प्रोडक्शन सफर ए शहादत काफला अते सिख नेशन इन्हां चैनल के उपर लाइव समागम चल रहा है। सरबत संगतां नूं बेनती है, आओ भाई साहब जी पासों आप जी 9:15 बजे तक गुरमत विचारां दे नाल जुड़न दा यतन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद प्रभ दातो दातार
ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ, ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇ, ਜਿਹ ਲਗ ਭਉਜਲ ਤਰਨਾ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ, ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਕਹਾਂ ਤੁਛ ਪ੍ਰਭ ਬੁੱਧ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੇ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਤਈ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੜ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਓ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਚਾਏ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚਿੱਤਾਪਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਿਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਲਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਚਾਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਨਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਾਰਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ।
तो मैं अपने विचार शुरू करन तो पहला मेरी एक आदत है, बिरती है, सुभाव है कि जिमें खेत विच बीज पाउण तो पहला ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ खेत ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ। ਜੇ खेत ਸਵਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, बीज पा दिता जाए, वो बीज बेकार चला जाता है। इस वास्ते तुहाडे हिरदे रूपी खेत विच गुरु दे ज्ञान का बीज पाउण वास्ते, परमेश्वर दे नाम का बीज पाउण वास्ते तुहाडे हिरदियां रूपी खेत नूं तैयार करना बहुत जरूरी है। ते मेरे विच समर्था नहीं, पर गुरु महाराज विच बड़ी समर्था है। गुरु रामदास जी का कथन है, गुर पारस हम लो, गुरु पारस है असी लोहे वर्गे, मिल कंचन होया राम। पर नाल शर्त है, गुरु पारस ते है, असी लोहे वर्गे हाँ, पर लोहा पारस नाल छू के सोना बन सकता है। इस तरह जे असी अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र कर लईए, जे असी गुरु का इतिहास, गुरु की बाणी नूं सुन लईए, फिर साडे जीवन विच तब्दीली आ सकती। तो ये है मेरी बेनती। एक पासे मैं पंक्ति बोलांगा, पिछे तुसी सारियां ने बोलनी, बस अपने आप ही फिर बिरती जुड़ जाएगी। होए एकतर मिलो मेरे भाई, होए एकतर मिलो मेरे भाई। बहुत धन्यवाद है, पर हाली भी जितनी संगत दास नूं दर्शन हो रहे ने, बड़ी दूर दूर तक बैठी, उन्नी आवाज़ नहीं आई। जे उन्नी आवाज़ आ जाती तो जिहड़े बाहर इर्द गिर्द फिरदे ने उन्हां दे कंन खड़े हो जाने सन। उन्हां नूं एहसास हुंदा, उन्हां नूं प्रेरणा मिलती बई असीं पछड़ गए। जिहड़ी संगत गुरु दरबार विच हाज़र है, उन्हां दी हाज़री लगी तो साडी लगी नहीं। इसलिए कोई रसना खाली ना रहे। महाराज की कह रहे ने, होए एकतर मिलो मेरे भाई, होए एकतर मिलो मेरे भाई। दुविधा दूर करो लिवलाए, दुविधा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, हर नामे के हो वो जोड़ी। गुरमुख बैसो सफा बिछाए, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने दास की बेनती मन ली, सारिਆਂ ने अपनी रसना पवित्र की। आओ हुण जिस कारज लिए असी एकत्रित होए हाँ, उस पासे जुड़ना कर। मेरे बजुर्ग पिता समान प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी कहा करते सन, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी जानो, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। जिन्हां दा पुरब मनाउण लई, जिन्हां दा प्रकाश पुरब मनाउण लई, जिन्हां दे आगमन दिवस नूं मनाउण लई
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਵਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲਸ ਨਾ ਕੇ ਬਸਾਲ, ਤਵੰਗਰੀ ਦਿਲਸ ਨਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਅਮੀਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਨਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। तो बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी, उन्हां दी लासानी कुर्बानी संसार दे अंदर किसनू नहीं पता। पर अज बाबा जुझार सिंह जी दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित समागम हो रहा। ये तो है उन्हां दे जीवन की जानकारी। भई उन्हां दा जन्म आनंदपुर साहिब विखे होया। उन्होंने गुरु पिता की जेर सरकर्दगी, उन्हां दी नज़र थले दैवी गुण प्राप्त किए। जिथे गुरबाणी पढ़नी सीखी, जिथे विद्या पढ़ी, उत्थे उन्होंने शस्त्र विद्या भी सीखी, उन्होंने घोड़ सवारी भी सीखी, उन्होंने तीरंदाजी भी सीखी। तो 14 साल की उम्र कितनी क वड्डी हुंदी है, ये तुसीं आप अनुमान लाओ। इन्ने समय विच आनंदपुर साहिब की धरती ते रहिंदियां उन्होंने गुरु पिता की कृपा का सदका वो सारे दैवी गुण प्राप्त किए। ये तो उन्हों संखेप जिहा जीवन है। हुण असीं उस जीवन की गहराई विच जदों जावांगे, क्योंकि जो सिक्ख्या किसी भी बच्चे नूं मिलती है वो उहदे जीवन में रंग भर दिंदी है। ये कलगियां वाले पातशाह दे साहिबजादे सन। इन्हां ने गुरु पिता की जेर सरकर्दगी वो सारे दैवी गुण प्राप्त किए। पर इन्हां नूं अपने पिछोकड़ का भी पता है। ये जानते हैं कि असी किदी अंश वंश हाँ। साडे पिता ने की कीता, साडे दादा जी ने की कीता, साडे परदादा जी ने की कीता। ज्यों ज्यों इतिहास नूं पढ़ोगे, साडी बदकिस्मती ये है कि सानू अपना इतिहास भुलदा जा रहा। पर बाबा जुझार सिंह जी नूं, बाबा अजीत सिंह जी नूं, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी नूं
ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। इत मार्ग पैर धरी जय, इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजै कान न कीजै, सिर दीजै कान न कीजै। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਨੂੰ सिर्फ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਾਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਹਾ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਤਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਟਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਬੀਜ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠੇ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਥਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरी जय, इत मार्ग पैर धरी जय। सिर दीजै कान न कीजै, सिर दीजै कान न कीजै। तो गुरु के साहिबजादियां ने गुरु घर विच जन्म लैके ये सारे दैवी गुण प्राप्त किए सन। उन्होंने बाणी द्वारा ये सिक्ख्या प्राप्त सी और इस सिक्ख्या उन्होंने समा आने उत्ते अमली जामा पहनाया। उन्होंने अपने गुरु पिता की बख्शिश के नाल हर पीड़ा विच, हर मुश्किल विच साबित कदमी के नाल अपने पिता जी की आग्या का पालन किया। पर जिहड़ा कुर्बानी का जज्बा है, ये सिर्फ आग्या नाल नहीं होता, ये तां वो अंदरली भावना है। क्योंकि कलगियां वाले पातशाह ते स्पष्ट करते हैं, साच कहो सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पाए। ये प्रेम की है, गुरु के बचना नू सुनना ते मनना। हुणे हुणे भाई शौकीन सिंह जी कह रहे सन, सानू भी अरदास करनी चाहिए है, सानू भी गुरु कोलों सिक्ख्या लैनी चाहिए है। महाराज असीं तुहाडे दर ते प्रवान होना चाहिए, तो किवें होईए? तो गुरु पातशाह कहने, भाई जे मेरे राह ते चलना है, जे तुसी गुरु नूं प्रवान होना है, फिर गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। जिथे असी साहिबजादा जुझार सिंह जी का प्रकाश दिन मना रहे हैं, उत्थे असी उन्होंने जीवन उत्ते चाहत भी मारनी, फिर अपनी स्वै पड़चोल भी करनी है कि की असी भी उन्होंने पाए पूर्णिया ते चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कलगियां वाले बादशाह ने कोई सिखां की भीड़ गिणती वधाउण की गल नहीं की। उन्होंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। ये अर्थ कौन नहीं जानता, पर अज असी विचार के देखिए कि असी रहत बैत विच किन्ने परपक्क हाँ। असी कित्थे कित्थे ढिलियाई दिखा रहे हैं। फिर आख्या रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। रहत बिना ना सिख कहावे, रहत बिना दर चोटा खा। अज असी गुरु के सिख से अखवाते हैं, पर जे गुरु की रहत नहीं रखते,
जे गुरु की रहनी ते नहीं चलते फिर साडियां कमियां साडे वास्ते दुश्वारियां पैदा कर रही हैं। आओ साहिबजादा जी के जीवन तो प्रेरणा नहीं, उन्होंने गुरु पिता की छत्र छाया हेठ अपना बचपन 14 साल की उम्र की होंगी है, पर इस उम्र में उन्होंने ऐसे दैवी गुण सीखे कि उन्होंने अंदर आपा निछावर करन दा वो जज्बा, वो स्पिरिट पैदा हो गई कि इस धरती के उत्ते जिसनों असी चमकौर की घड़ी कहने हाँ, जिस धरती उत्ते गुरु पातशाह जी ने 40 सिंघां दे नाल 10 लाख का मुकाबला किया अते अपने उन्हां बचनां नूं अमली जामा पहनाया। कदों पातशाह ने जदों साडी बांह फड़ी, साडी हालत की सी, साडी दशा की सी। इत्थे किसी नूं घोड़े ते चढ़न की इजाजत नहीं सी, इत्थे किसी नूं शस्त्र रखने की इजाजत नहीं सी, इत्थे किसी नूं दमाला तुरलेदार पग बनने की इजाजत नहीं सी। पर कलगियां वाले पातशाह ने की कहा, आख्या इन गरीब सिखन को दें पातशाही, ये याद रखें हमारी बुराई, जिनकी जात और कुल माही सरदारी ने पही कदाही, तिनको मैं सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम का। आख्या मैं इन्हां गरीबां नूं अपने पैरों ते खड़ा करांगा, जेड़े अपने आप नूं बिल्कुल गिदड़ समझते हैं, भेडां समझते हैं, मैं इन्हां नूं शेर बना दियां। जेड़े अपने आप नूं चिड़ियां समझते हैं, मैं इन्हां नूं बाज बना दा तथा बाजां लड़ा दियाँगा। चिड़ियां कोलों बाज तुड़ाऊँ, रंकन से मैं राह बनाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तबे गोबिंद सिंह नाम का। इस धरती उत्ते गुरु पिता की छत्र छाया हेठ 40 सिंघां ने 10 लाख का मुकाबला किया ते जदों 5-5 सिंह जथा बना के चमकौर की गढ़ी विचों बाहर निकलते, सचमुच कलगियां वाले पातशाह दे वो बचन साकार हो रहे सन। पर अज जदों पंथ की दशा वल नज़र मारते हाँ तो कई तरह दीयां सोचां, कई प्रश्न चिन्ह अपने मन में उपजते ने भी ये की बन रहा है। पर याद रखो गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने बचन कहे तन, जब लग खारता रहे न्यारा, जब लग खारता रहे न्यारा। तब लग तेज दयो मैं सारा, तब लग तेज दयो मैं सारा। मैनू खुशी है मेरे पीछे बैठे मेरे वीर पूरा सहयोग दे रहे हैं। संगतां ते शांत हो गई, संगतां लगता है थक भी गई बड़ी जल्दी, पर नहीं, जे तुसी गुरु के इन्हां बचनां नूं अज याद करोगे, फिर साहिबजादा जुझार सिंह जी, फिर साहिबजादा अजीत सिंह जी, फिर साहिबजादा जोरावर सिंह जी, फिर साहिबजादा फतेह सिंह जी की वो प्यारी याद साडियां अखां दे सामने साकार हो जाएगी। ते जेड़े कलगियां वाले पातशाह ने साडे नाल एग्रीमेंट कीते सन, साडे नाल बचन कीते सन, उन्हां बचनां की याद भी ताज़ा कराउणी मेरे वर्गे प्रचारक की सेवादार की ड्यूटी है। बहुत दिन होए, एक दिन बंगला साहिब कथा करदियां कोई ऐसी घटना हुई तो मन में विचार आए, मैं एक कथा सुना देती। मैं कहा जी मैं बंबई हर साल गांदा सी, क्योंकि दास ने अपने संगी साथियों समेत लगभग 45 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ बोध समागम किए हैं। पाठ बोध समागम की होंदा है, एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक
सारी बाणी का एक एक अखर पढ़ना, विचारना, ਉਹਦੀ लग मात्र तक की विचार करनी। तो बंबई हर साल हर कॉलोनी में असी एक एक पाठ किया है। एक दिन वरसोवा नगर के अंदर सवेरे सवेरे दास ने कथा की, 6:30 तो 7:30 का टाइम सी। जदों मैं कथा करके हेठां आ गया तो प्रबंधकां ने एक कार ते ड्राइवर दिता होया सी, बई तुसी कथा तो वेले होके इत्थे पहुँच जाना। बड़े ध्यान नाल सुनने वाली गल है। मैं क्यों ये गल सुना रहा, ये मेरी ड्यूटी है। जदों मैं गड्डी विच बैठ गया, एक बजुर्ग मेरे नालों ते बहुत बड़ी उम्र दे सन, सादे कपड़े, खदर दा परना बलेटिया होया, मेरी गड्डी कोल आके खड़े हो गए। कहन लगे, ज्ञानी जी मैं भी तुहाडे नाल चलना। मैं कहा जी ठीक है, गड्डी खाली है, मैं तो 1.25 लाख ही हाँ, तुसी आ जाओ। मेरा ख्याल सी कि इन्होंने उत्थे जाके पाठ सुनना होगा, बजुर्गों नूं लगन होवे। वो मेरे नाल बैठ गए तो बैठदियां सार उन्होंने अपनी गल शुरू कर दी। भाई साहब मैं पता क्यों बैठा, मैं इसलिए बैठा कि तुसी आधा घंटा गुरु के शब्द की कथा सुनाई है। जिन्नी संगत ने तुहाडी सेवा की है, उस माया नूं गिणदियां तुहानूं आधा घंटा लग जाना है। पर मैं ये पुछण लई बैठा भई चौकीदार क्यों रखिया जाता है? मुहल्ले विच, पिंड विच चौकीदार क्यों रखिया जाता है? सारा पिंड सारा मुहल्ला रल के चौकीदार की तनख्वाह देंदा है, क्यों रखिया जाता? इसलिए कि साडे मुहल्ले विच चोरी ना होवे, साडे पिंड विच चोरी ना होवे। पर जे चौकीदार दे हुंदियां चोरी हो जाए तो फिर सब तो पहला सवेरे किनू पूछा जाएगा? चौकीदार। कहने लगे मैं इसलिए आया कि कलगियां वाले पातशाह के दरबार में जदों तुसी जाओगे, कलगियां वाले पातशाह तुहानूं पुछणगे क्यों भाई साहब तुसी कित्थे साओ? जदों इन्हां नौजवानों ने केसां की बेदबी की, जदों इन्हां ने दाड़ियां दे कीमती केसां नूं पटाया, तुसी कित्थे साओ? साध संगत मैं गुरु ग्रंथ साहब जी हजूरी विच कह रहा, बंबे का मौसम ऐसा है कि उत्थे पसीना नहीं आता, इको जिहा मौसम रहिंदा है 12 महीने 30 दिन। पर उस बजुर्ग की गल सुन के सिर तो लैके पैरों तक मेरा पसीना छुट गया। साध संगत आप उस धरती ते बैठे हैं, अपने अपने अंदर झात मारीए, अपनी पीढ़ी हेठ सोटा फेरीए कि गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने साडे नाल ये एग्रीमेंट कीता सी, उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिता सी। पर कादे लई? सानू अपने पैरों ते खड़ा होने लई, सानू 1.25 लाख नाल एक एक नूं लड़ाउण लई, साडे अंदर वो जज्बा ते जोश पैदा करने लई। पर नाल ये भी कहा कि जब लग खालता रह नियारा, जब लग खालता रह नियारा। तब लग तेज दयो मैं सारा, तब लग तेज दयो मैं सारा। जब गए पिपरन की रीत, जब गए पिपरन की रीत, मैं न करूं इनकी परतीत, मैं न करूं इनकी परतीत। इहो जे समागम, इहो जे प्रोग्राम स्वै प्रचोर करने लई सानू प्रेरणा करते हैं।
ठीक है असी कह दिता साहिबजादा जी का जन्मदिन बधाई देते, रागी सिंह ने शब्द भी पढ़े, हम घर साजन आए। भाई ये ठीक है, इन्हां शब्दां नाल असी खुशी का प्रगटावा ते कीता, पर सवाल तो इत्थे आउंदा है कि जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी जानो, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। इस तो वध कलगियां वाले पातशाह होर की कर सकते सन। जदों पातशाह ने अपना सारा परिवार वार दिता, चारे साहिबजादे वार दिते, अते जिन्हां हालात विच चमकौर दी गढ़ी तो निकल के माछीवाड़े वल गए अते सारा लुधियाने दा आलमगीर ये इलाके विच ने, ते फिर दमदमा साहब आए, साबो की तलवंडी, ते उत्थे पातशाह ने आके कुछ समा आराम किया, पर नहीं वो आराम नहीं सी, उन्हां दे हाली जिहड़े काम बाकी सन वो कीते। इतिहास गवाह है कि उत्थे गुरु के महल माता साहिब कौर जी, माता सुंदर कौर जी दिल्ली तो चल के दर्शन करने वास्ते आए। बड़ा भारी दीवान लगा सी, अते उस सजे हुए दीवान विच मातावां ने नज़र मार के देखा। देखो जदों असी किसी भी जगह जाइए असी अपने लभण का यतन करते हैं, उन्होंने नज़र मारी, किधरे माता जी नज़र नहीं आए, किधरे साहिबजादे नज़र नहीं आए, तो उन्होंने पति परमेश्वर नूं पुछया कित्थे हैं लाल चारे, कित्थे है मात गुजरी। साध संगत इतिहास से तुसी सारे जानते हो, पर कलगियां वाले पातशाह ने जो उत्तर दिता वो असी भुल गए लगते हाँ। कलगियां वाले पातशाह ने की उत्तर दिता सी? उन्होंने साडे वल हथ करके कहा, इन पुत्रन के सीत पे, इन पुत्रन के सीत पे, वार दिए सुत चार, वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार, लोग पुत्रां दे बदले बहुत सारी संपत्ति कुर्बान करने तैयार हो जाते, पर कलगियां वाले पातशाह ने साडे तो अपने वो लखते जिगर भी वार दिते, ते सानू अपने पुत्र धीआं बनाया। अज असी ये गल विचारीए कि असी उन्हां दे पाए पूर्णियां ते चल रहे हैं, जे नहीं चल रहे तो फिर कमी साडे विच है। भाई आओ स्वै पड़चोल करिए, और स्वै पड़चोल करने का सब तो उत्तम तरीका यह है कि एक तो गुरु का इतिहास पढ़ो, एक गुरु की बाणी पढ़ो। ये तीन सोमे हैं। गुरु की बाणी पहला सोमा है, गुरु साहिबान का इतिहास दूजा सोमा है, तो तीजा सोमा उन्होंने गुरसिखां का जीवन इतिहास है जिन्होंने गुरु के पाए पूर्णियां ते चल के अपना आप निछावर कर दिता, पर सिखी सिदक वालों मूँह नहीं मोड़े, जिन्होंने आप रोज़ अरदास विच याद करते हैं, जिन्हों सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, चरखियां ते चढ़े, खोपरियां लोहाइयां, आरियां नाल तन चिरवाए, जिउंदे अग्गां विच साड़े गए, धर्म हेत कुर्बानियां दित्तियां, पर सिखी सिदक केसां सुआसां तक निभाया। ये ठीक है कि लीडरशिप दीयां कमियां कई बारी कौम नूं बहुत धक्का मारदियां ने, पर नहीं, मैं फिर भी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ। ਸਮਾਂ ਵਿਖੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਰਾਪਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਤੇ ਸਕਾਰਥੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਮੁਖ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਥਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਮੁਖ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नावे। कई हुजत करनगे, रोज़ अमृतसर कौन जाए? अरे भाई जिस सत्संगत भी तुसी बैठे हो, ये अमृतसर है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सर ना बंदा, गुर के बचन उचार के धर्मसाल दी सुरत करन दा। फिर शंका मनो मटाए के गुरसिखां दी सेव करदा। फिर धर्मसाल जांदा है, गुरु दे दर्शन करदा है। मैं अपने विचारां नूं संकोचदियां होया एक कोई बेनती करांगा, 4 काम रोज़ करिया करो। तुसीं आखोगे किहड़े किहड़े? मैनूं किसी करनी वाले गुरसिख तो प्रेरणा मिली। मैं उन्होंने सवेरे सवेरे फतेह बुलाई तो पूछया, बापू जी कित्थे चले हो? कहते मैनू गुरु साहब ने 4 काम कहे ने, 2 मैं कर आया, 2 मैं करन चलिया। मैं कहा जी मैनू भी दसो। आखिर तुसीं तो ज्ञानी हो। मैं क्या नहीं, असल ज्ञानी वो है जिहड़ा गुरु के बचना अनुसार चल रहा। खैर कहणगे तुसीं ये शब्द नहीं पढ़िया, अंतर गुरिया राधना जेवा जप गुर नाउ, नेत्री सतगुर पेखना, श्रमणी सुनना गुर नाउ। मैं 2 काम घर कर आया। सवेरे उठिया, वाहगुरू का सिमरन किया, फिर अपना नितनेम किया। ये 2 काम घर करके आया। तो बाकी दे 2 काम हुण गुरु घर में जाके करांगा। नेत्री सतगुर पेखना, श्रमणी सुनना गुर नाउ। धन गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करांगा, संगत विच बह के कीर्तन कथा विचार सुनांगा। ते गुरु पातशाह ने सतगुर सेती रत्या, दरगाह पाइए थाओ। कहो नानक कृपा करे, जिसनों ए वत दे, जग में उत्तम कांढिए विरले के ते जेड़े गुरु दे दसे राह ते चलणगे, रखे रखण हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन। होआ आप दयाल, मनो न विसारियन, साध जनक के संग भवजल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मनै माही। जिस सिमरत सुख होए
सगले दुख। समा हो चुका है, भुलों चुकां की खिमा बख्शनी। जो कुछ कहा है ये गुरु आशे ते गुरु की सिक्ख्या मुताबिक इनू मैं भी मन्ना, तुसी भी मनो। ते गुरु ग्रंथ साहब जी गारंटी देंदे ने, लोग सुखीए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे। भुलों चुकां की खिमा बख्शनी। गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ बहुत ही सत्कारयोग भाई ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी पासों गुरमत विचारा गुर इतिहास सरवण कर रहे सी। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब जियां दा। सतगुरु जी दे चरनां विच अरदास है, पातशाह जी मेहरामत करन भाई साहब जी नूं इसे तरह चढ़दी कला दे नाल समुची मानवता दी सेवा करन दा बल बख्शिश करन। जम्मिया पूत भगत गोबिंद का, प्रगटिया सब मह लिखिया तुर का। धन धन साहिबजादा बाबा जुझार सिंह साहब जी, तिन्हां दे पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित हो करके इस रात्रि दे समागम दियां हाज़रियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा जी, असल विच इस तरह दे समागम मनाउणे, संगतां दा इकट्ठ करके इस तरह दे विद्वान साहिबानां नूं बुला के आप सर्वा संगतां नूं हर जस सुनाउणा ये कोई फॉर्मैलिटी नहीं। इहदे विचे बहुत वड्डा एक सिद्धांत है। जिस अस्थान ते तुसीं जुड़ करके बैठे हो ना, एक विद्वान का कथन है, शहीदों की कत्ल गाओ से क्या बेहतर है काबा। शहीदों की चिताओं पे खुदा भी कुर्बान होता है। ये पो पावन अस्थान है। असल विच अपनियां दा जस ते हर कोई मनुख करदा है। आनंद तां आउंदा है जदों कोई दूसरी मत वाला वो किसे दा जस करे। ते दुनिया दा एक महान विद्वान हकीम मिर्जा अल्लाह यार खां जोगी होए। उन्हें आख्या, ए दुनिया दे लोगों, कोई शक नहीं कि इस संसार दे उत्ते बहुत वड्डे तो वड्डे तीर्थ ने, पर जे कोई मैनू पूछे कि तीर्थां दे बाबत ते मैं इको ही गल कहनी चाहुंदा कि सारी जिंदगी सारे संसार नूं घुम के वेख लिया ते अपनी जिंदगी दे तजर्बे दे आधार ते मैं इको ही गल कहनी चाहुंदा कि बस एक ही हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। उस पावन अस्थान ते तुसी हाज़रियां भर रहे हो। असल विच ये दिहाड़े मनाउणे बहुत ज़्यादा जरूरी ने। एक छोटा जिहा नुकता सरवण करे, उस तो बाद फिर गुरु के रागी सिंह पहुंच चुके हैं। जिहड़ियां कौमां अपने वड वडेरियां दा इतिहास भुल जाण, वो कौमां इस संसार तो हमेशा वास्ते खत्म हो जांदियां हैं। एक विद्वान का कथन है, किसी भी कौम नूं और किसी भी मच्छी नूं मारन वास्ते किसी हथियार की लोड़ नहीं पैंदी। मेरी बेनती है, एकाग्रता बख्शिश करो।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਲਦੀ, ਤੇਲ ਬੁੱਕੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਹੋ ਗੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਪਰ ਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਵਾਂਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉनको ਜਾਨ ਵੀ ਲੋ, ਜਿਨ ਕੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਮਾਨ ਵੀ ਲੋ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। आओ जिनके पुरब मनाते हो उनको जान भी लो, जिनके पुरब मनाते हो उनकी मान भी लो। अरदास करिए सतगुरु जी मेहरामत करन, साडे ये मनाए हुए पुरब सफले हो जान। आप सर्बा संगतां नूं बेनती है कि जिस थां ते गड्डियां दी पार्किंग कीती है उत्थे दो गड्डियां, एक PB 23G 0901 नंबर दी गड्डी ਅਤੇ PB 12A 0391, ਇਹ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सिमरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब जी ठीक 10:30 बजे